बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Bismillahirrahmanirrahim. Dear parents and students, Assalamu alaikum. In the previous lecture, we have completed our unit number 11, Sound. Now, in this lecture, we are going to start our next chapter, unit number 12, which is Geometrical Optics. First, we will discuss that which concepts we are going to study in this chapter. So after studying this unit, students will be able to, what we will study in this unit. Number one, describe the terms used in reflection, including normal, angle of incidence, angle of reflection, and state laws of reflection. In unit number 10, simple harmonic motion and waves, in the last topic of that unit, we have studied different properties and characteristics of waves, like reflection, refraction, and diffraction of waves. As you know that light is also a form of wave. It is an electromagnetic wave. So light also have these properties of reflection, refraction, and diffraction. Diffraction जो होती है लाइट में वो बहुत कम होती है, but reflection and refraction are more prominent phenomena in case of light waves. So we will discuss reflection and refraction of light thoroughly in this chapter. As you already know that what are angle of incidence, angle of reflection, and normal. We have studied these terms in reflection of water waves, in which I told you about what are incident waves or incident rays and what are reflected rays or reflected waves. So moreover, we shall study more concepts about light, in which we study different instruments like mirrors, lenses, and different applications of mirrors and lenses like camera, microscope, टेलीस्कोप, स्पेक्टिकल्स, और भी हम बहुत ज़्यादा इसमें चीज़ों को डिस्कस करेंगे. सो ये जो सारे कॉन्सेप्ट्स हैं इनको मैं एक दफ़ा रीड कर देता हूँ. Solve problems of image location by spherical mirrors by using mirror formula. As I already told you that we shall study different kinds of mirrors in this chapter. So different terminologies relating to mirror or the mirror formula, which is 1 over f is equal to 1 over p plus 1 over q. We shall solve different numericals by using this formula. And in the last section of this chapter, we shall study different applications of mirrors and lenses like simple microscope, compound microscope, and telescope. So the next is science, technology and society connections. जब मैंने आपको साउंड के चैप्टर स्टार्ट करवाया था उसमें भी मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि हम जब कोई भी चीज़ या कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं तो वो सिर्फ हम पढ़ने की हद तक या सिर्फ पेपर को सॉल्व करने की हद तक नहीं पढ़ते, बल्कि हम उस चैप्टर को जब अंडरस्टैंड करते हैं तो हम देखते हैं कि जितने भी कॉन्सेप्ट्स हमने उस चैप्टर में पढ़े वो सारे डेली लाइफ में अप्लाई होते हैं. डेली लाइफ की जितनी भी एग्जांपल्स हैं जिनको हम विजुलाइज करते हैं वो सारे कॉन्सेप्ट उस पर अप्लाई होते हैं. अब इस चैप्टर को पढ़ने के बाद ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम डेली लाइफ में देखते हैं और अप्लाई करते हैं. उनमें से कुछ मैं आपके सामने रीड कर देता हूँ. फर्स्ट है, डिस्क्राइब द यूज़ ऑफ स्फेरिकल मिरर्स फॉर सेफ ड्राइविंग, ब्लाइंड टर्न्स ऑन हिली रोड्स, डेंटिस्ट मिरर. जब हम मिरर के बारे में पढ़ लेंगे तो हम उसके बाद ये देखेंगे कि मिरर्स की एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पर हैं. ठीक है, आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ जो आपके जब आप कार ड्राइव कर रहे होते हैं तो जो साथ में आपके मिरर्स होते हैं, ठीक है, साइड मिरर्स जिनको आप कहते हैं, एक राइट पर होता है एक लेफ़्ट पर होता है. उनकी क्या इंपॉर्टेंस है? अगर वो साइड मिरर्स प्रेजेंट ना हो तो आप क्या करें, आप पीछे जो आपकी ट्रैफिक आ रही है या अगर आप गाड़ी को रिवर्स कर रहे हैं
तो अगर साइड मिरर्स ना हो तो आप ये नहीं देख पाएंगे कि पीछे इस वक्त क्या है, ठीक है। तो इस साइड मिरर्स, ये भी एक मिरर्स की टाइप है, साइड मिरर्स। सो इनकी हम एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे कि ये इनमें कौन सा फिनोमिना ऑफ लाइट अप्लाई हो रहा होता है। इसमें बेसिकली रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का फिनोमिना अप्लाई हो रहा होता है। उसके अलावा ब्लाइंड टर्न्स ऑन हिली रोड्स, के हिली रोड्स पर भी हम इसी तरह करते हैं, हम मिरर्स लगा देते हैं। वो हम किस तरह लगाते हैं, उनका क्या एंगल रखा जाता है, वो भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके बाद है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है या डिवाइस है या इक्विपमेंट है जिसको हम यूज़ करते हैं सिग्नल को या वेव्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करने के लिए, या हमने अगर सिग्नल या इंफॉर्मेशन को बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस पर ट्रांसमिट करना हो तो उसके लिए हम एक इक्विपमेंट यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं ऑप्टिकल फाइबर। अब ऑप्टिकल फाइबर का जो पीछे कॉन्सेप्ट है, उसके नीचे जो उसके अंदर जो फिनोमिना अप्लाई हो रहा है या जो उसका वर्किंग प्रिंसिपल है वो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि बहुत सारे आपकी जो डिवाइसेस या इक्विपमेंट हैं उनमें यूज़ हो रहा है। सो इसलिए हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे और उसके बारे में पढ़ेंगे, और फिर बाद में ऑप्टिकल फाइबर में जाकर हम उसकी एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे। सो डिस्क्राइब द यूज़ ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स इन टेलीकम्युनिकेशंस। टेलीकम्युनिकेशन क्या होती है, जिसमें हमने सिग्नल को या इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करवाना होता है। एंड मेडिकल फील्ड एंड स्टेट द एडवांटेज ऑफ देयर यूज़। इसी तरह मेडिकल फील्ड में भी जैसे लाइट पाइप है, ठीक है, लाइट पाइप को हम यूज़ करते हैं बॉडी के जो अंदर ऑर्गन्स हैं उनका इमेज लेने के लिए। सो उसमें भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमिना अप्लाई हो रहा होता है। उसके बाद है डिस्क्राइब द यूज़ ऑफ अ सिंगल लेंस एज मैग्नीफाइंग ग्लास इन अ कैमरा, प्रोजेक्टर एंड फोटोग्राफिक इनलार्जर एंड ड्रॉ रे डायग्राम्स टू शो हाउ ईच फॉर्म्स एन इमेज। कैमरा आजकल के दौर में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड करवा रहा हूँ तो मैं वीडियो कैमरा पे अपनी वीडियो रिकॉर्ड करवा रहा हूँ। सो जो कैमरा होता है उस कैमरे के अंदर क्या लगा होता है, लेंस लगा होता है, ठीक है। और लेंस में जो फिनोमिना अप्लाई हो रहा होता है वो होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का, ठीक है। सो हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को डिस्कस करेंगे, उसके एंगल्स जितने होते हैं उसको डिस्कस करेंगे, और फिर जो एप्लीकेशंस हैं डिफरेंट, स्लाइड प्रोजेक्टर है, जैसे कि आपको जो ग्राफ वाला एक लेक्चर भेजा गया था वो स्क्रीन पर प्रेजेंटेशन बनी गई थी और प्रोजेक्टर की मदद से वो जो इमेज था, क्योंकि प्रोजेक्टर के साथ एक जो आपके पास तार होती है जिसे हम VGA कहते हैं, उसको हम अपने सिस्टम के साथ कनेक्ट करते हैं लैपटॉप के साथ। तो जो इमेज होता है या जो लैपटॉप का हमारा डिस्प्ले होता है वो थ्रू उस स्लाइड प्रोजेक्टर के उस पर लेंस लगा होता है, उसे वो मैग्नीफाई करके स्क्रीन पर डाल देता है, ठीक है। सो उसमें भी आपके पास लेंस लगा होता है, वो भी एप्लीकेशन है इसमें जो हम पढ़ेंगे, डेली लाइफ में जो चीज़ें यूज़ होती हैं। उसके बाद डिस्क्राइब द यूज़ ऑफ लेंसेज, कॉन्टैक्ट लेंसेज फॉर रेक्टिफाइंग विजन डिफेक्ट्स ऑफ द ह्यूमंस, ठीक है। ये जो हमने जो ग्लासेस पहने होते हैं, ठीक है, इनमें भी ये जो हमारे ग्लासेस होते हैं इनमें भी बेसिकली लेंस लगा होता है, ठीक है। अब वो लेंस डिपेंड करता है कि वो आपको दूर की नज़र आपकी वीक है या आपके करीब की नज़र वीक है, तो उस हिसाब से लेंस को यूज़ किया जाता है, ठीक है। सो वो अगर आप देखें तो मैंने भी इस वक्त जो है आपके पास जो ग्लासेस हैं वो पहने हुए हैं, तो इनका भी बहुत ज़्यादा रोल है डेली लाइफ में। अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 20 to 30% लोग जो हैं वो ये यूज़ करते हैं लेंसेज। लास्ट है डिस्क्राइब द एक्सप्लोरेशन ऑफ द वर्ल्ड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बाय यूजिंग माइक्रोस्कोप्स एंड डिस्टेंट बॉडीज बाय टेलीस्कोप, सेलेस्टियल बॉडीज बाय टेलीस्कोप। अब आपने देखा होगा जब ज़्यादातर चांद वगैरह देख रहे होते हैं ईद के मौके पर या रमज़ान या किसी भी इस्लामिक मंथ का जब स्टार्ट होता है उससे पहले चांद को देखा जाता है। तो चांद को किसकी मदद से देखा जाता है, अगर हमने किसी दूर की चीज़ को देखना हो, बहुत दूर की चीज़ को, तो हम टेलीस्कोप को यूज़ करते हैं। तो टेलीस्कोप में भी लेंस यूज़ होता है। इसी तरह अगर हमने बहुत छोटे साइज़ के किसी ऑब्जेक्ट को देखना हो, जैसे कि अगर हम बायोलॉजी में बात करें तो हम डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या डिफरेंट इंसेक्ट्स को डिस्कस करते हैं। जैसे आजकल कोविड का आया हुआ है, कोविड-19 आया हुआ है, जिसकी वजह से टेस्ट वगैरह होते हैं, तो उनमें भी माइक्रोस्कोप यूज़ होते हैं, ठीक है। ब्लड का सैंपल लिया जाता है, ब्लड में देखा जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म या जिस तरह भी टेस्ट उसका किया जाता है, तो उसमें माइक्रोस्कोप बहुत टाइनी ऑर्गेनिजम्स को विजुलाइज करने के लिए यूज़ किया जाता है। सो ये सारी एप्लीकेशंस हैं डेली लाइफ की जो हम इस चैप्टर को पढ़ने के बाद देखेंगे। नाउ कमिंग टुवर्ड्स आवर चैप्टर विच इज़ ज्योमेट्रिकल
optics. Geometrical optics consist of two words or two concepts, geometrical and optics. Geometrical का क्या मतलब होता है? आपने मैथमेटिक्स में ज्योमेट्री बेसिकली कहते हैं किसी शेप को बनाना. लाइक आपने मैथमेटिक्स में आपके डिफरेंट पोर्शंस होते हैं. एक आपका अलजेब्रा का पोर्शन होता है, ठीक है, जिसमें आप बेसिकली ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एडिशन, ये सिंपल अलजेब्रा होता है. उसके अलावा एक एंड पर ज़्यादातर बुक्स में पोर्शन होता है ज्योमेट्री का, जिसमें आप क्या करते हैं, आप अपना एक ज्योमेट्री बॉक्स जो होता है जिसमें आपके पास मुख्तलिफ गैजेट्स होते हैं, स्केल होता है, प्रोटेक्टर होता है, ठीक है, डिवाइडर होता है, कॉम्पस होती है और सेट स्क्वायर, डिफरेंट आपके पास उसमें गैजेट्स होते हैं जिनकी मदद से आप क्या करते हैं, आप डिफरेंट शेप्स को ड्रॉ करते हैं. ठीक है, क्या करते हैं, डिफरेंट शेप्स को ड्रॉ करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्केल, प्रोटेक्टर और कंपास. सो ज्योमेट्री का क्या मतलब होता है? ज्योमेट्री का मतलब होता है किसी भी शेप को बनाना. सो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, ज्योमेट्री का तो आपको समझ आ गया ज्योमेट्री का क्या मतलब है. ज्योमेट्री का मतलब है टू ड्रॉ अ स्पेसिफिक काइंड ऑफ शेप. उसके अलावा ऑप्टिक्स क्या है? ऑप्टिक्स एक ऐसी ब्रांच है फिजिक्स की, आपने हो सकता है 9th क्लास में ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स में पढ़ के आए हुए हैं कि ऑप्टिक्स द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द लाइट वेव्स एंड देयर प्रॉपर्टीज. कि हम इस ब्रांच में क्या डिस्कस करते हैं, हम लाइट वेव्स को डिस्कस करते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं कि उनमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ प्रेजेंट. सो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स क्या है? ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स ये है डिस्क्राइबिंग प्रोपगेशन ऑफ लाइट इन टर्म्स ऑफ रेज. अब प्रोपगेशन का क्या मतलब है? प्रोपगेशन वर्ड आप पहले यूनिट नंबर 10 सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स में डिस्कस करके हैं. प्रोपगेशन का मतलब होता है ट्रैवल करना, एक जगह से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाना, प्रोपगेट करना. सो डिस्क्राइबिंग प्रोपगेशन ऑफ लाइट, हम किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं? हम ऑप्टिक्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, हम लाइट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. सो डिस्क्राइबिंग प्रोपगेशन ऑफ लाइट इन टर्म्स ऑफ रेज. अब यहाँ वर्ड क्या यूज हुआ है? रेज. रेज का क्या मतलब होता है? जैसे कि अगर हम आगे इस चैप्टर में मैं आपको लेकर जाऊं, तो अगर आप लेंसेज की फॉर एग्जांपल मैं आपको, या चलें रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में एग्जांपल दूं, तो पेज नंबर अगर आप 42 ओपन करें अपनी बुक का, पेज नंबर 42, तो उसमें फिगर 12.8 में रे बताया हुआ है, इंसिडेंट रे और इमर्जिंग रे, इसी तरह एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. उसके अलावा अगर आप वापस पेज नंबर 37 पर आएँ, यहाँ भी लिखा हुआ है इंसिडेंट रे, ठीक है, और रिफ्लेक्टेड रे. ये जो ए पॉइंट से शो हुई है वो इंसिडेंट रे, और जो जा रही है वापस टकरा कर वो रिफ्लेक्टेड रे. सो रे का वर्ड यूज हुआ है. अब रे उसने किस तरह ड्रॉ किया? रे उसने ड्रॉ किया विद द हेल्प ऑफ अ स्केल. वो एक लाइन ड्रॉ की है, एक डायगोनल लाइन ड्रॉ की है. सो आप लाइट के पैसेज को फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट किसकी मदद से डिस्क्राइब कर रहे हैं? विद द हेल्प ऑफ रेज. और रेज भी क्या है? लाइन्स हैं. और लाइंस को हम किस चीज़ में ड्रॉ करते हैं? हम ज्योमेट्री के पोर्शन में लाइंस को ड्रॉ करते हैं. ठीक है, जब आप ज्योमेट्री का पोर्शन मैथ्स में डिस्कस करते हैं तब आप मुख्तलिफ एंगल्स बनाते हैं, सर्कल बनाते हैं, ट्राइंगल बनाते हैं, रेक्टेंगल, स्क्वायर और भी पैरेललोग्राम, बहुत सारी शेप्स आप ड्रॉ करते हैं. सो हम क्या कर रहे हैं? ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में हम क्या करेंगे? हम लाइट की प्रोपगेशन, मतलब लाइट कैसे ट्रेवल करिए एक जगह से दूसरी जगह, इन द फॉर्म ऑफ रेज बताएंगे, या इन द फॉर्म ऑफ लाइंस भी आप इनको कह सकते हैं. हम बताएंगे कि लाइट कैसे ट्रेवल करती है. ठीक है, सो ये है मतलब ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का, कि हम क्या करें, हम लाइट के पैसेज को इन द फॉर्म ऑफ ज्योमेट्री, इन द फॉर्म ऑफ लाइंस शो करेंगे. इस सारे चैप्टर में आपको एक टर्म आगे जाकर हम पढ़ेंगे, रे डायाग्राम. कोई भी हम लेंस, कोई भी हम फॉर एग्जांपल कैमरा है, स्लाइड प्रोजेक्टर है, कोई भी हम इंस्ट्रूमेंट जब इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे तो हम एक चीज़ ज़रूर उसकी डिस्कस करेंगे, विच इज़ द रे डायग्राम, कि उसमें लाइट की रेज कैसे ट्रैवल करेंगी, वो रिफ्लेक्ट करेंगी, वो कैसे ट्रैवल करेंगी. सो उसको रे डायग्राम क्या करती है? रे डायग्राम आपको बताती है द पैसेज ऑफ लाइट थ्रू अ स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट, इन द फॉर्म ऑफ रेज. दिस इज कॉल्ड द रे डायग्राम. ठीक है, so coming towards our main topic which is reflection of light. से ऊपर जो पैराग्राफ है उसको मैं एक दफ़ा रीड कर देता हूँ
लाइट इज द मेन फोकस ऑफ दिस यूनिट। इस चैप्टर में हम जितना भी डिस्कस करेंगे वो लाइट से मुतालिक ही डिस्कस करेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, थोड़ा सा लेंथी भी है लेकिन ये इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है बहुत, तो इसलिए आपने इसको अच्छी तरह से समझना है। We shall describe different phenomena of light such as reflection, refraction and total internal reflection. We will learn how images are formed by mirrors and lenses. Mirrors और lenses में हम differentiate में करेंगे, क्या फ़र्क होता है। Basically mirrors में phenomena apply होता है reflection of light, और lenses में phenomena जो apply होता है वो होता है refraction of light, ठीक है। एंड विल डिस्कस वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप, वो चैप्टर के एंड पे हम डिस्कस करेंगे। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे जाने से पहले एक चीज़ आपको बताना ज़रूरी है कि मिरर क्या होता है और मिरर और लेंस में क्या फ़र्क होता है। आम तौर पर जब हम कहते हैं कि जब हम शीशा देखते हैं, ठीक है, अपना हमने इमेज देखना होता है, ठीक है, तैयार वगैरह होते हैं, हमें इमेज देखना होता है, अपनी शक्ल देखनी होती है, तो हम कहते हैं कि कोई हमें कहता है शीशा देखा हो जाकर, या कोई कहता है अगर वो छोटा सा जो होता है मिरर उसको कहते हैं शीशा ज़रा दिखाना, तो वो बेसिकली अब तो बहुत ज़्यादा लोगों ने कहना शुरू कर दिया, इसलिए वो गलत टर्मिनोलॉजी अब यूज़ होती है। ये चीज़ जो हम कहते हैं कि शीशा देखना, ये गलत है। शीशा और आईना इसमें बहुत फ़र्क है। जो हम बेसिकली अपना इमेज देख रहे होते हैं वो होता है आईना, वो शीशा नहीं होता। आईना जो आईना होता है वो मिरर होता है, और जो शीशा होता है उसे हम बेसिकली लेंस कहते हैं या ग्लास कहते हैं, ठीक है, ग्लास कहते हैं। ग्लास और मिरर में क्या फ़र्क है, आपने देखा होगा जब आपके घरों में जो शीशा लगा होता है उसकी एक सरफेस जो होती है उसको अगर आप पीछे से देखें, जो आपके शीशा लगा हुआ है अगर आप उसको पीछे से देखें या उसे उतार के देखें तो एक सरफेस पे तो बिल्कुल ग्लास लगा होता है, और जो पीछे वाली सरफेस होती है वो पॉलिश्ड होती है। क्या होती है, वो पॉलिश्ड होती है, और ज़्यादातर वो जो पॉलिशिंग मटेरियल होता है वो यूज़ होता है सिल्वर ऑक्साइड, ठीक है, Pb3O4। केमिस्ट्री में आपने हो सकता है इसका फॉर्मूला पढ़ा। Pb कहते हैं लेड को, और ऑक्सीजन अगर साथ आ जाए तो वो ऑक्साइड बन जाता है किसी भी एलिमेंट का। सो Pb3O4 जो कि पीछे, अब मिरर का मैं आपको क्या बता रहा था, मिरर की एक सरफेस जो है आपके पास रिफ्लेक्टिंग होती है, और एक सरफेस जो उसके पीछे सरफेस होती है वो क्या होती है, वो पॉलिश होती है, ठीक है। आप उसमें भी देख लें, अगर जो साइड मिरर्स आपके लगे होते हैं, साइड मिरर जो गाड़ी में लगे होते हैं या जो बाइक में भी आपके पास लगे होते हैं, उनकी एक सरफेस पे लगा होता है शीशा, और जो पिछली सरफेस होती है वो पॉलिश हुई होती है, ठीक है, या किसी सॉलिड मटेरियल से कवर हुई होती है। सो मिरर में क्या फ़र्क है, मिरर की एक सरफेस क्या होती है, पॉलिश होती है। अब पॉलिश होने से क्या होता है, पॉलिश होने से बेसिकली जब लाइट रेज जाकर पड़ती हैं, अभी हमने रिफ्लेक्शन में पढ़ना भी है, लाइट रेज वहाँ उस पर जाकर स्ट्राइक करके वापस रिफ्लेक्ट करती हैं। लेकिन जो ग्लास होता है या जो शीशा होता है, आप अगर वो जो पानी पीने वाला ग्लास होता है, क्या आप उसमें अपना प्रॉपर इमेज देख सकते हैं, नज़र आ जाता है आपको, लेकिन अब जिस तरह का आपको आईने में आता है उस तरह का आप इमेज देख सकते हैं, बिल्कुल नहीं देख सकते। सो जो आपके पास मिरर है और लेंस है उसमें फ़र्क ही ये है कि मिरर की जो एक सरफेस होती है वो पॉलिश होती है, बल्कि लेंस की जो है वो कोई, या जो ग्लास होता है वो ओवरऑल क्या होता है, प्लेन होता है, उसकी कोई सरफेस पॉलिश नहीं होती। इसीलिए ग्लास में से लाइट क्या कर जाती है, ग्लास में से लाइट पास कर जाती है, या जब हम रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे ग्लास में से लाइट क्या हो जाती है, रिफ्रैक्ट हो जाती है, ठीक है। और मिरर में से लाइट क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है। यही बेसिक आपके पास डिफरेंस है मिरर्स और लेंसेज या ग्लास में, कि मिरर में लाइट रिफ्लेक्ट करती है, स्ट्राइक करके वापस आती है, और लेंसेज या ग्लास में लाइट क्या करती है, रिफ्रैक्ट करती है, ट्रांसमिट हो जाती है, ठीक है। वो अलग बात है कि उसकी स्पीड कम हो जाती है, उसका डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल चेंज हो जाता है, वो हम इंशाल्लाह रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में डिटेल से डिस्कस करेंगे। सो नाउ वी विल कम टुवर्ड्स आवर मेन टॉपिक, आवर फर्स्ट टॉपिक विच इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सबसे पहले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, जैसा कि हमने रिफ्लेक्शन ऑफ वाटर वेव्स पढ़ी और रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स पढ़ी, ठीक है, जिसको हमने इको भी कहा, लेकिन थोड़ा सा रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड और इको में डिफरेंस था, क्योंकि इको जो था वो किसी सिंगल सरफेस से परफॉर्म हो रहा था और रिफ्लेक्शन डिफरेंट सरफेसेस से भी हो सकता है। सो रिफ्लेक्शन क्या थी, रिफ्लेक्शन ये थी कि अगर कोई भी वेव आए, या अगर लाइट की मैं बात करूँ तो लाइट की अगर कोई भी रे आती है और वो स्ट्राइक करती है, वो क्या करती है, स्ट्राइक करके बाउंस बैक हो जाती है, वापस चली जाती है दोबारा, तो इस फिनोमिना को, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ
लाइट। या आपने पहले भी पिछले 2 चैप्टर्स में पढ़ ली है, इसलिए अब डिटेल से बताने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, किस तरह रिफ्लेक्ट करती है मिरर से वो इंशाल्लाह अभी हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। डिफाइन एंड एक्सप्लेन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। किस तरह लिखना है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपने डेफिनेशन में हेडिंग देनी है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। डेफिनेशन देख लें। व्हेन लाइट ट्रेवलिंग इन अ सर्टेन मीडियम फॉल्स ऑन द सर्फेस ऑफ अनदर मीडियम, अ पार्ट ऑफ इट टर्न्स बैक इन द सेम मीडियम। मतलब लाइट जो है वो एयर में ट्रेवल कर रही है, क्योंकि आपको पता है लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उससे मीडियम नहीं भी चाहिए होता। अगर मीडियम ना भी हो तो फिर भी स्पेस से भी वो ट्रेवल कर जाएगी, लेकिन मीडियम से भी पास कर जाती हैं। सो इस केस में फॉर एग्जांपल लाइट, इस सिनेरियो में बात करते हैं तो लाइट का कौन सा मीडियम है, लाइट के बीच में जो ट्रेवल कर रही है लाइट वो एयर है, ठीक है। सो एयर आई, एयर के जरिए वो एक मीडियम से ट्रेवल की और फॉर एग्जांपल इस बोर्ड से आकर क्या की, रिफ्लेक्ट कर गई, ठीक है। सो ये पहला मीडियम एयर हो गया, दूसरा मीडियम ये सॉलिड बोर्ड हो गया। सो जब वो एक मीडियम से, यही वो कह रहा है ट्रेवलिंग इन अ सर्टेन मीडियम मींस एयर, और इस मीडियम पे आकर फॉल किया उसने, या अगर मिरर में कहूँ तो मिरर भी से जाकर सॉलिड है उस पर जाकर स्ट्राइक की और बाउंस बैक हो गई, ठीक है, टुवर्ड्स द फर्स्ट मीडियम, मतलब दोबारा एयर में चली गई। सो दिस फिनोमिना इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। सो ये इसकी डेफिनेशन हो गई। पहले भी हमने पढ़ा है रिफ्लेक्शन ऑफ वाटर वेव्स में सेम फिनोमिना है, लेकिन लाइट में थोड़ा सा हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले आपने लिखनी है इसकी डेफिनेशन। उसके बाद जो फर्स्ट पैराग्राफ लिखा हुआ है इसके ऊपर आप हेडिंग बना लें एक्सप्लेनेशन। क्या हेडिंग बनेगी, एक्सप्लेनेशन। अच्छा, अब आपने क्या करना है, ये बेसिकली जब आप स्कूल आ जाएंगे तब हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का एक प्रैक्टिकल भी परफॉर्म करना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि उसने बना कर दिखाया हुआ है तो इसलिए मैंने भी यहाँ पर बना दिया। अब आपने भी यहाँ पर, क्योंकि मैंने मार्कर से ड्रॉ किया और ये जो सरफेस है थोड़ी सी ये स्लिपरी है तो वो लाइन थोड़ी बहुत टेढ़ी भी हो सकती है, लेकिन आपने क्या करना है, आप जब पेपर पे आपने रजिस्टर पर ड्रॉ करोगे, आपके पास स्केल होगा, आपके पास पेंसिल होगी, आपने क्या करना है, सबसे पहला स्टेप आपने एक सीधी स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेनी, ठीक है। आपकी मर्जी, आप 10 सेंटीमीटर की ले ले, 5 सेंटीमीटर, जितने की भी ले लें, ठीक है। सो 5 जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ये 5 सेंटीमीटर की मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद 5 का हाफ क्या होता है, 5 का हाफ होता है जी 2.5, ठीक है। तो 2.5 सेंटीमीटर पर लाकर आपने एक डॉट लगा लेना, एक पॉइंट लगा लेना, ठीक है। उस पॉइंट के आपने क्या करना है, कुछ एंगल पे, ठीक है, कुछ एंगल पे, फॉर एग्जाम्पल जब आप डी यूज़ करेंगे, ठीक है, डी से बेसिकली आप एंगल को मेजर करते हैं। सो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर डी को रखेंगे बीच में, ठीक है, एट पॉइंट 0, आपको पता है किस तरह ड्रॉ करते हैं, आप यहाँ पर डी को रख लेंगे, जो आपका 2.5 वाला पॉइंट होगा उस पर जो डी का मिड पॉइंट है वो आप रख लेंगे। और फॉर इंस्टेंस आप क्या करें, आप जो 60 डिग्री का वो जो आपके पास आ रहा होता है, फॉर एग्जाम्पल ये है आपके पास डी, आपको पता है यहाँ पर 0 होता है, यहाँ पर 90 होता है, यहाँ पर आपके पास 30 है, यहाँ पर 60 है। तो आप क्या करें, आप इस तरह से लाइंस होती हैं, ऐसे ही होता है ना डी में, ठीक है, और 90 के बाद यहाँ 120 है, ठीक है, उसके बाद 150 है और एट लास्ट यहाँ 180 है, ठीक है। आप क्या करें, आप 60 की जो लाइन है वहां पर एक डी की मदद से पॉइंट लगा लें, ठीक है, पॉइंट लग गया। उसके बाद आप ये जो मिड पॉइंट था 2.5 सेंटीमीटर का, उसको इस पॉइंट के साथ क्या कर दें, ज्वाइन कर दें, तो आपके पास एक डायगोनल लाइन आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद आप क्या करें, उसके बाद आप सेम यहाँ पर जो है, अगर आपने यहाँ पर 60 मतलब यूज़ किया, 60 से 90 यूज़ किया, तो उसके बाद आपने सेम ही मतलब डिफरेंस रखना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एंगल का डिफरेंस क्या है, 90 माइनस 60 30, बेसिकली ये 30 का आपने 90 के साथ डिफरेंस रखा है। उसके बाद आप यहाँ पर भी एंगल 30 के डिफरेंस के साथ ही कर लें, तो क्या एंगल बन जाएगा आपका 120, ठीक है। सो जब आप यहाँ पर रखकर आपने 60 पर पॉइंट लगाया और यहाँ पर आपके पास होगा 120, आप 120 पर पॉइंट लगाए, ठीक है। जो 120 का उसी तरह पॉइंट आए उसको 2.5 वाला जो मिड पॉइंट आया था उसके साथ क्या कर लेंगे, उसके साथ ज्वाइन कर लेंगे। रिमेंबर कि आपने ओवरलैप नहीं करना दोनों लाइनों को,
फॉर एग्जाम्पल आपके पास इस तरह ज़रा मार्कर से अगर आप ड्रॉ कर लें तो वो ज़रा थिक हो जाएगा पॉइंट, तो एक साइड पर इस तरह लाइन आ जाएगी और एक साइड पर आपने ऐसे लाइन लगानी, कि इस तरह करनी है कि वो आपस में ओवरलैप ना हो जाए, ठीक है। सो इस तरह आपके पास क्या आ जाएंगी, लाइंस आ जाएंगी। डी अभी भी आपके पास मौजूद है। अब आपने क्या करना है, आपने अब नॉर्मल ड्रॉ करना है। रिमेंबर मैंने आपको नॉर्मल बताया था जब रिफ्लेक्शन ऑफ वाटर वेव्स मैंने आपको पढ़ाई थी, तब मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि नॉर्मल क्या होता है। नॉर्मल होता है, हम 90 के एंगल को कहते हैं, या एक स्ट्रेट लाइन होती है। मैंने आपको उस वक्त भी बताया था कैसे ड्रॉ करना है आपने 90 का एंगल। आपने उसी तरह जो 60 और 120 का जिस तरह ड्रॉ किया है, डी को रखना है इधर, डी को रख लिया। जब डी को आपने इधर रख लिया तो जो बिल्कुल स्ट्रेट आपके पास लाइन होगी इस तरह जा रही होगी डी में, वो किसको शो करती है, वो 90 के एंगल को शो करती है, ठीक है। तो आपने स्ट्रेट जाकर जहां 90 लिखा हुआ है वहां क्या लगा देना है, आपने पॉइंट लगा देना। वहां क्या लगा देना है, आपने इस तरह पॉइंट लगा देना, ठीक है। पॉइंट लग गया, उसके बाद उसी तरह आपने सीधा, क्योंकि वो जो लाइन आएगी वो सीधी आनी चाहिए, अगर उस लाइन में जरा सा भी डिफरेंस हो गया तो आपका एंगल खराब हो जाएगा। अभी हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में पढ़ेंगे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, अगर तो वो सेम नहीं है तो आपका गलत हो जाएगा प्रैक्टिकल जो आप परफॉर्म। तो आपने क्या करना है, 90 का जो पॉइंट है उससे सीधी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन उस जो 2.5 वाले पॉइंट के साथ क्या कर देनी है, बिल्कुल स्ट्रेट स्केल की मदद से ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। तो आपके पास 3 रेज आ जाएंगी। अब इन रेज को नाम देते हैं। जो पहली रे आई है लाइट की, अब हम ये क्या करें, विद द हेल्प ऑफ स्केल, विद द हेल्प ऑफ अ ज्योमेट्री, लाइट की पैसेज को बता रहे हैं। तो हम क्या चीज डिस्कस कर रहे हैं, हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। सो ये जो फर्स्ट रे आपने 60 के एंगल पे बनाई थी, इट इज कॉल्ड द इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इंसिडेंट होता है आकर लगना, आकर पड़ना। सो इस रे को हम इसलिए कह रहे हैं, ये रे कौन सी है, इंसिडेंट रे, जो कि इस तरह अगर आप लें तो ये जो रे आ रही है लाइट की, फॉर एग्जांपल इसको अगर मैं रे ऑफ लाइट कंसीडर करता हूं तो दिस रे ऑफ लाइट विल कम एंड स्ट्राइक द सेकेंड मीडियम। सो ये जो रे होगी, ये कौन सी रे होगी मेरे पास, इंसिडेंट रे, ठीक है। सो इसलिए मैंने क्या किया, ये लाइन है, इसको, ये लाइन को मैंने नाम दिया AO का, ठीक है। ये लाइन मेरे पास क्या है, आप बेसिकली जो लाइन सेगमेंट्स को शो करते हैं ज्योमेट्री में, वो क्या करते हैं कि फर्स्ट पॉइंट बताते हैं, सेकंड पॉइंट बताते हैं और उसके ऊपर इस तरह लाइन लगाते हैं। इस तरह लाइन सेगमेंट आप ज्योमेट्री में शो करते हैं। सो लाइन AO हमारे पास क्या है, इंसिडेंट रे, ठीक है। उसके बाद जो इंसिडेंट रे आकर टकराई और वापस चली गई फर्स्ट मीडियम में, उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे, क्योंकि उस पॉइंट पर, अच्छा ये जो पॉइंट आया मिड पॉइंट 2.5, ये कहलाता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, क्योंकि इस पॉइंट पर आकर रे क्या की है, इंसिडेंट की है। इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, इस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो यहां आकर लाइट ने स्ट्राइक किया और वो वापस रिफ्लेक्ट हो गई, इसलिए उसको कह रहे हैं रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे को शो कर रहे हैं OB से, ठीक हो गया। उसके बाद नॉर्मल एक है, नॉर्मल को शो कर रहे हैं ON से, ठीक है। अब एक एंगल आपके पास बनेगा, ठीक है। एंगल आपका जो नॉर्मल रे ON, AO इंसिडेंट रे के साथ जो एंगल बनाएगी, इंसिडेंट रे नॉर्मल रे के साथ जो एंगल बनाएगी या नॉर्मल लाइन के साथ जो एंगल बनाएगी, उस एंगल को हम क्या कहते हैं, रिमेंबर फ्रॉम द रिफ्लेक्शन ऑफ वाटर वेव्स, उस एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। द एंगल मेड बाय द इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल, द एंगल मेड बाय द इंसिडेंट रे with the normal is called the angle of incidence. इसी तरह the angle made by the reflected ray with the normal line is called the angle of reflection. The angle made by the reflected ray with the normal is called the angle of reflection. ठीक है। उसके बाद एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम शो करते हैं I से, आई स्मॉल आई, और ऊपर हम इस तरह कैप लगा देते हैं। इसी तरह रिफ्लेक्टेड एंगल को जो है उसको हम स्मॉल r और ऊपर इसी तरह कैप लगा देते हैं, इस तरह शो करते हैं इनको। सो ये हो गई आपके पास रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसको एक दफ़ा से जो एक्सप्लेनेशन की मैंने हेडिंग बनवाई थी आपसे, उसके नीचे से आप इसको रीड करते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज इलस्ट्रेटेड इन फिगर 12.1। ये फिगर आपने लाजमी बनानी है पेपर में अगर क्वेश्चन आता है।
When a ray of light from air along the path AO, उसका पाथ क्या है? उसका पाथ है A से O की तरफ, जो कि एयर में से आ रही। AO falls on a plane mirror, ठीक है। ये मिरर जो है, इसमें यहाँ पर एक चीज रह गई, इसको हम इस तरह, ये जो स्मॉल डैशेस मैं लाइंस बना रहा हूँ, ये क्या शो करती हैं कि ये मिरर है, कि इसकी जो एक सरफेस है वो क्या है? पॉलिश्ड है, और एक सरफेस क्या है? रिफ्लेक्टिंग है। सो द रे AO, उसके बाद AO फॉल्स ऑन अ प्लेन मिरर M, मिरर को M से शो किया हुआ है, प्लेन मिरर M। इट इज रिफ्लेक्टेड अलोंग द पाथ OB, वो क्या हुई? जब आकर इंसिडेंट की पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर वो रिफ्लेक्ट हो गई, किस पाथ पे? OB पाथ पे। ये पाथ है OB, ठीक है। The ray AO is called the incident ray while the ray OB is called a refracted ray. अब एंगल्स की बात आ रही है। The angle between incident ray AO and normal N, which is angle AON, इसको किस तरह लिखना है? ये है एंगल। अब वो कह रहा है एंगल जो इंसिडेंट रे AO किसके साथ बना रही है? N के साथ। N क्या है? नॉर्मल, जिसको कौन सा एंगल कह रहे हैं? AON, ठीक है। इसको लिखने का तरीका ये होता है कि जो नॉर्मल लाइन होती है उसको हम जिस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं वो आपके पास जो है इस तरह आता है, ठीक है। एंगल AON, ठीक है। यही यहाँ पर उसने लिखा हुआ है एंगल AON। सो ये AO लाइन हो गई और साथ में N हो गया, नॉर्मल भी आएगा ना साथ में, तो ये एंगल AON, ये कौन सा एंगल है? ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। इसी तरह वो क्या कह रहा है? द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे AO एंड नॉर्मल N, दैट इज एंगल, ये एंगल का सिंबल होता है। AON इज कॉल्ड द एंगल ऑफ इंसिडेंट रिप्रेजेंटेड बाय I, ठीक है। आई कैप, अगर उसने यहाँ बुक में वैसे कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन उसने अगर बुक में नहीं दिया हुआ तो आप रहने दें, आप सिंपल I से रिप्रेजेंट कर लें। द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे OB, दैट इज NOB, ठीक है। ये जो एंगल बन रहा है ये स्टार्टिंग में लेते हैं, मतलब ये था AON और यहां से जो एंगल बन रहा है वो है NOB। सो NOB आपके पास क्या है? NOB, ये है आपके पास एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। सो NOB इज कॉल्ड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन रिप्रेजेंटेड बाय R। उसके बाद आगे डायग्राम, ये एक्सप्लेनेशन की हेडिंग यहाँ पर खत्म हो गई। उसके बाद हेडिंग बनेगी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, जो कि बुक में बनी हुई भी है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब दो लॉज होते हैं रिफ्लेक्शन के। फर्स्ट लॉ हमें क्या कहता है कि द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ठीक है। कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन, कि ये जो सारी रेज हैं, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड, ये एक ही प्लेन हम बेसिकली कहते हैं एक्सिस को। आपने पढ़ा होगा ग्राफ में दो एक्सिस थे, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। वो ये कह रहा है कि आपके पास जो आपके पास इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है और जो नॉर्मल है वो एक ही प्लेन में लाए करेंगे, ठीक है। सो अगर हम देखें तो ये जो हमारे पास पूरा सेगमेंट बन रहा है, इस तरह नहीं हो रहा कि इंसिडेंट रे यहां है तो रिफ्लेक्टेड रे यहां आ रही है, इस तरह नहीं हो रहा। रिफ्लेक्टेड रे भी उसी एरिया में, उसी प्लेन में आ रही है, उसी एक्सिस में आ रही है। बेसिकली आपके पास एक्स वाई एक्सिस हैं, ये नहीं हो रहा कि वो इस एक्सिस से उठकर वहां पर चली गई, वो उसी एरिया में रह रही है। नॉर्मल लाइन भी उसी प्लेन में है और रिफ्लेक्टेड रे भी उसी प्लेन में है और इंसिडेंट रे भी उसी प्लेन में है या उसी एक्सिस में है, ठीक है। जो हम ये एक्स वाई एक्सिस यूज करते हैं, हमें इसे हम बेसिकली एक्स वाई प्लेन भी कहते हैं, ठीक है। और एक होता है टू डायमेंशनल प्लेन, ये जो एक्स वाई एक्सिस होता है इसको हम कहते हैं 2D या टू डायमेंशनल प्लेन। उसके अलावा एक होता है 3D, आपने सुना होगा 3D का लफ्ज बहुत ज्यादा, उसको हम कहते हैं 3 डायमेंशनल। उसमें हमारे पास एक्स वाई और एक और एक्सिस भी आ जाता है जिसे हम कहते हैं जी एक्सिस, जिसे हम क्या कहते हैं? जी एक्सिस, उसे हम कहते हैं 3D प्लेन, ठीक है। अब यहां पर क्या हो रहा है? इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे एक ही प्लेन में क्या कर रही हैं? लाई कर रही हैं, ठीक है। सो ये आपके पास था फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर ये नहीं होगा, ये हो कि वो किसी और जगह पे सेगमेंट में जाकर रिफ्लेक्टेड रे हो, तो फिर रिफ्लेक्शन नहीं होगी। सो पहला पॉइंट कंप्लीट। उसके बाद क्या कहता है? द एंगल ऑफ इंसिडेंस आई विल बी इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है
वो किसके इक्वल होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। ये मेन आपके पास लॉ है रिफ्लेक्शन का। अगर तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल नहीं होंगे तो रिफ्लेक्शन रेगुलर नहीं होगी और अच्छी रिफ्लेक्शन परफॉर्म नहीं होगी हमारे पास। सो दो लॉज हैं, एक है कि जो तीनों रेज हैं इंसिडेंट, नॉर्मल और आपके पास रिफ्लेक्टेड, वो सब एक ही प्लेन में लाई करें, एक ही एक्स वाई प्लेन में लाई करें। और दूसरा क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो इंसिडेंट एंगल आए नॉर्मल के साथ जो वो बनाए एंगल, वो किसके इक्वल होना चाहिए, जो रिफ्लेक्टेड नॉर्मल के साथ बनाए, सेम होना चाहिए दोनों का। अगर आप देखें तो यहाँ पर हमने जो नॉर्मल और उसके दरमियान एंगल रखा है वो बेसिकली 30 डिग्री का एंगल रखा है, ठीक है। नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट रे का एंगल है 90 माइनस 60 30, और यहाँ भी जो हमने वो एंगल रखा है 120 का, वो भी 90 के साथ जो रखा है वो सेम डिफरेंस के साथ रखा है, 30 के डिफरेंस के साथ। तो दोनों एंगल्स आपके पास क्या होंगे, सेम होंगे। सो ये है आपके पास रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, या जिसको आप कहते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब साइड पे जो इंफॉर्मेशन दी हुई हैं उसमें ये चीज़ बताई गई है, फिजिक्स ऑफ लाइट अगर मैं डिस्कस करूँ वहाँ ये चीज़ बताई हुई है कि जब आप देखते हैं, पुराने ज़माने में बहुत पहले ये एक परसेप्शन था कि जो हम चीज़ें देखते हैं वो ये कहते थे कि हमारी आँख में से कोई ऐसी चीज़ निकलती है जिसकी वजह से हम चीज़ों को देख सकते हैं। ये पहले परसेप्शन था। अगर तो ये होता तो इसका मतलब है कि हम तो अंधेरे में भी चीज़ों को देख लेते अगर हमारी आंखों में से कोई ऐसी चीज़ निकलती। लेकिन ऐसा नहीं है। जब साइंटिस्ट ने ये चीज़ देखी, रिसर्च की, तब उन्होंने देखा कि जब हम फॉर एग्जांपल इस वक्त हम बुक को अगर पढ़ रहे हैं या टेबल पर रखकर बुक को पढ़ रहे हैं, तो बुक पर जो लाइट रेज, ऊपर अगर बल्ब लगा हुआ है, कोई लाइट लगी हुई है या सोर्स ऑफ लाइट लगा हुआ है, तो लाइट आकर उस बुक पर फॉल करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी, हमारी कहाँ जाएगी, आंखों पर जाएगी। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप पढ़ें, ठीक है, तो आपकी जो बुक है उसके ऊपर होना चाहिए लाइट, ताकि जो रिफ्लेक्शन है वो हर पॉइंट से होकर कहाँ जाए, आपकी आंखों पर जाए और अच्छी तरह से आपको। अगर तो आप लाइट इस तरह, और आप मतलब एंगल भी आपने सही रखना होता है कि वो बिल्कुल स्ट्रेट आकर टकराएं। अगर आप इस तरह कर लेंगे फिर भी आपको नजर नहीं आएगी अच्छी तरह, अगर आप इस तरह कर लेंगे फिर भी आपको अच्छी तरह से नजर नहीं आएगी, तो वो बिल्कुल 90 के एंगल पर फॉल करनी चाहिए। उसके अलावा अगर इसको पढ़ें, वी सी अ पेज ऑफ बुक बिकॉज लाइट रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम ईच पार्ट ऑफ द पेज इन ऑल डायरेक्शन सो दैट सम ऑफ द लाइट रेज फ्रॉम ईच पार्ट ऑफ द पेज एंटर आवर आई। कि कुछ जो लाइट रेज पड़ती हैं, जो चीज़ हमें नज़र आती है बुक की, जो हम पढ़ रहे होते हैं, वहाँ पर लाइट रेज पड़ती हैं और रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में जाती हैं। जो चीज़ हम नहीं देख रहे होते वहाँ लाइट नहीं पड़ती और वो हमें ब्लैंक नज़र आता है। सो बिकॉज ऑलमोस्ट नो लाइट इज रिफ्लेक्टेड बाय द प्रिंटेड वर्ड्स वी सी दैम एज ब्लैक एरियाज। नेक्स्ट, ये जो फॉर योर इंफॉर्मेशन है, इसमें जो मेन कॉन्सेप्ट है वो इंशाल्लाह आप सेकेंड ईयर में जाकर पढ़ेंगे। लेकिन मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि पहले जो है कुछ साइंटिस्ट ने कहा था, इसको पढ़ लेते हैं। इन द अर्ली 1700s देयर वर टू आइडियाज अबाउट द नेचर ऑफ लाइट, पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर। दो आपके पास लाइट की नेचर्स थी। न्यूटन पुट फॉरवर्ड द आइडिया ऑफ कॉर्पस्कुलर नेचर ऑफ लाइट। ठीक है, कॉर्पस्कुलर नेचर ऑफ लाइट का मतलब है कि लाइट की जो नेचर है वो पार्टिकल नेचर है। ठीक है, कॉर्पस्कुलर का मतलब है पार्टिकल नेचर है कि लाइट जो है वो टाइनी स्मॉल पैकेट्स या पार्टिकल से मिलकर बनी है। कुछ का ये आइडिया था कि लाइट की नेचर जो है वो पार्टिकल्स है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी हुई लाइट। लेकिन कुछ का ये ख्याल था कि लाइट जो है वो एक फॉर्म ऑफ वेव है। सो न्यूटन ने कहा था कि अकॉर्डिंग टू हिम लाइट कंसिस्ट ऑफ टाइनी फास्ट मूविंग पार्टिकल्स, जिनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। मैक्सवेल, ये भी एक साइंटिस्ट था, फॉर्मुलेटेड द वेव थ्योरी ऑफ लाइट। उसने कहा नहीं, लाइट वेव नेचर है, लाइट की, लाइट एक वेव की फॉर्म है। उसके बाद क्या हुआ, इन 1802 थॉमस यंग, ये भी एक साइंटिस्ट था, प्रूव द वेव नेचर ऑफ लाइट एक्सपेरिमेंटली। ठीक है, उसने एक्सपेरिमेंट करके प्रूव किया इस बात को कि लाइट की जो नेचर है वो वेव नेचर है। In 1900, Planck suggested that light consists of small packets of energy called photon. उसने ये कहा कि लाइट के अंदर छोटे छोटे पैकेट्स, जैसे हम पैकेट्स आम यूज करते हैं ना, उसने भी ये कहा कि लाइट के अंदर जो है वो छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट्स मौजूद हैं। ठीक है, उन पैकेट्स को उसने नाम दिया था फोटॉन्स का, PHOTONS। अब ये फोटॉन्स क्या हैं? ये छोटे छोटे पैकेट्स ऑफ एनर्जी हैं
इसके बारे में डिटेल आप इंशाल्लाह सेकेंड ईयर फिजिक्स में जाकर डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप ये याद रख लें कि फोटॉन्स जो हैं वो एनर्जी के स्मॉल पैकेट्स हैं। So Planck suggested that light consists of small packets of energy called photon. Later on, the idea of photon was confirmed by experiments. ये confirm भी हुआ experiment से कि बात बिल्कुल ठीक है। Now अब क्या है? Now we know that light has dual nature, wave as well as particle. ये चीज़ बहुत important है और ये बहुत ज़्यादा जगहों पर यूज़ भी होती है। अब ये थ्योरी आ चुकी है कि लाइट की जो नेचर है वो ड्यूल नेचर है। ड्यूल कहते हैं दो तरह की नेचर है, एक है उसकी वेव नेचर और एक है उसकी पार्टिकल नेचर। अब ये किस तरह है इसकी डिटेल इंशाल्लाह आप सेकंड ईयर में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप ये समझ लें कि लाइट की वेव नेचर भी है और लाइट की पार्टिकल नेचर भी है, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर इसमें हम इस चैप्टर में हम वेव नेचर को ही डिस्कस करेंगे। नाउ विल मूव टुवर्ड्स आवर लास्ट टॉपिक विच इज़ टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। साउंड में भी थोड़ा सा मैंने आपको इसके बारे में बताया था। एक है रेगुलर रिफ्लेक्शन और एक है इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है? अगर तो सरफेस स्मूथ है बिल्कुल, ठीक है, अगर तो सरफेस बिल्कुल स्मूथ है तो लाइट रेज इक्वली क्या करेंगी, आकर उस पे से रिफ्लेक्ट करेंगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, क्या है रेगुलर रिफ्लेक्शन? रिफ्लेक्शन बाय स्मूथ सरफेसेस। सो ये आई लाइट की रेज और रिफ्लेक्ट करेंगी, ठीक है, बिल्कुल एक ही मतलब उस पे एंगल पर आई और सेम एंगल पर क्या करेंगी, रिफ्लेक्ट करेंगी। सो द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्मूथ सरफेसेस, जो बिल्कुल स्मूथ हो, रफ बिल्कुल ना हो, कोई उनमें मतलब खुरदरी सी सरफेस ना हो, उसमें जो लाइट की रिफ्लेक्शन होती है उसको हम क्या कहते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर हो रही है, खास पैटर्न में हो रही है, इसलिए उसको कह रहे हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। उसके बाद सेकंड टाइप है हमारे पास इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। अब इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है? इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन ये है कि अगर सरफेस हमारे पास बहुत रफ हो, स्मूथ ना हो सरफेस, बहुत ज़्यादा रफ सरफेस हो, तो फिर लाइट जो है वो प्रॉपरली रिफ्लेक्ट नहीं करेगी। मतलब ये लाइट की रे आई वो उधर चली गई, ये लाइट की रे आई वो दूसरी तरफ चली गई, एक लाइट की रे आई वो कहीं और चली गई, मतलब एक खास पैटर्न को फॉलो नहीं कर रही लाइट की रेस। ये किस तरह होता है? अगर तो सरफेस जिस तरह मैंने यहाँ ड्रॉ किया है, रफ सरफेस हो, खुरदरी सी जिगजैग टाइप सरफेसेस हो, तो उसमें क्या होती है, हमारे पास प्रॉपर स्मूथ रिफ्लेक्शन नहीं होती, वो होती है इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। अब आपके जहन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि वाई ये इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन इज इंपॉर्टेंट और इसको हम क्यों स्टडी करें। देखें, इसमें एक बड़ा अच्छा अल्लाह तबारक व तआला ने जो निज़ाम बनाया हुआ है कि अगर आप सन को डिस्कस करें, सन जो है वो मेन सोर्स है आपकी लाइट का, ठीक है। रात को तो हम वैसी आर्टिफिशियल लाइट यूज़ करते हैं, लेकिन दिन में ज़्यादातर हम अपने जो काम है वो सन की रोशनी से करते हैं। अब सन जो है वो पूरी अर्थ पर आपके पास इस तरह मतलब चमक रहा है और लाइट रेज आ रही हैं। अब लाइट रेज जब सन में से आ रही हैं तो डिफरेंट बिल्डिंग्स, क्योंकि अर्थ पर बिल्डिंग्स प्रेजेंट है, मुख्तलिफ बिल्डिंग्स की सरफेसेस जो हैं वो स्मूथ नहीं है, ठीक है। हर जो बिल्डिंग है उसकी सरफेस स्मूथ नहीं है, रफ सरफेस है उसकी, तो वो आकर जब रिफ्लेक्ट करती हैं तो उनकी रिफ्लेक्शन रेगुलर नहीं होती बल्कि इर्रेगुलर हो जाती है। मतलब सन की रेज आकर पड़ती हैं तो वो रिफ्लेक्ट होकर कहीं और चली जाती हैं, कोई स्पेसिफिक पैटर्न को फॉलो नहीं करती। एक रे आकर कहीं और चली जाती है, एक रे आकर कहीं और चली जाती है, ठीक है। तो इस तरह फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा ये होता है कि बहुत दूर दूर तक सन की जो लाइट है या रेज हैं वो चली जाती हैं और उससे हम लाइट सोर्स के तौर पर उसको यूज़ करते हैं। सो अगर तो रेगुलर रिफ्लेक्शन होती तो फिर तो एक ख़ास पैटर्न में रिफ्लेक्शन होती और एक ख़ास पैटर्न में ही लाइट होती, हम तक पहुंचती। लेकिन इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन की होने की वजह से क्या हुआ, लाइट जो है वो हर जगह पर इक्वली क्या कर गई, स्प्रेड कर गई, ठीक है। सो जो जितने भी आपके पास अर्थ पर चीज़ें प्रेजेंट हैं वो सारी स्मूथ नहीं हैं बल्कि ज़्यादातर रफ हैं, ठीक है। सो उनमें से जाकर जब लाइट रिफ्लेक्ट करती है तो इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन होती है। इसी तरह अगर आप देखें, आपने बुक रखी हुई, आप बुक पढ़ रहे हैं बैठकर, और ज़रूरी नहीं होता हर दफ़ा कि लैंप आपके ऊपर ही हो सकता है जो लाइट का सोर्स है वो काफ़ी दूर हो, ठीक है। लेकिन क्या होता है, फिर भी आपको थोड़ी बहुत लाइट आ रही होती है और आप उसको देख सकते हैं। वो भी क्यों है? वो भी बिकॉज ऑफ इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। कि क्या है, आपकी जो कमरे में आज आप बैठकर बुक पढ़ रहे हैं वहाँ पर जो चीज़ें हैं वो भी स्मूथ नहीं हैं, ठीक है। मुख्तलिफ टेबल प्रेजेंट है, टेबल पर बुक्स हैं या कोई भी और चीज़ें प्रेजेंट है,
लैपटॉप पड़ा हुआ है, कोई भी चीज़ पड़ी हुई है, उससे जाकर जब लाइट पड़ती है वो भी स्मूथ सरफेस अगर नहीं है तो जाकर इरेगुलरली रिफ्लेक्ट करती है, और वो कुछ रेज जो होती हैं वो आपके पास बुक के पास आ जाती हैं जब आप देख रहे होते हैं, मतलब आपकी आई से कर जाती हैं, और कुछ जो होती हैं वो क्या करती हैं, वो कहीं और चली जाती हैं और स्प्रेड हो जाती है हर जगह। सो ये भी एक बड़ी अच्छी एग्जांपल है इरेगुलर रिफ्लेक्शन को अंडरस्टैंड करने की। सो इसको जो है आपने रीड कर लेना है, ये मैंने आपको बता दिया, इसको आपने अच्छी तरह से रीड कर लेना है। इनमें आपके पास डिफरेंस आता है शॉर्ट क्वेश्चन में, डिफरेंशिएट बिटवीन रेगुलर एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन। बुक में डेफिनेशन लिखी हुई है, आप इसको पढ़ लीजिएगा और साथ में डायग्राम भी आपने बनानी है। आज का हमारा लेक्चर यहाँ पर कंप्लीट होता है। इफ़ यू फाइंड एनी क्यूरी और प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस लेक्चर, you can ask us through a WhatsApp number which will be given to you at the end of this video through a voice message, text message or through an image। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के स्टार्ट में उसको सॉल्व किया जाएगा। आज का हमारा लेक्चर इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।